हेलो मेरे दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। और आज फिर से एक खास दिन है। आज मिशनरी डॉक्टर सुआरेस फिर से हमारे साथ है और मुझे ये बोलते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हम उनका स्वागत करते हैं। वेलकम मिशनरी टू आवर लाइव फॉर इंडिया वंस अगेन। Hello, people from India. I'm here again. I'm so pleased to be here with you. And Nikita invited me to participate with this live. And I'm sure that the Lord is going to bless you. और आज हमने उनको फिर से आमंत्रित किया है हमारे साथ में, ताकि परमेश्वर हमें निश्चितता से आशीष करेंगे। O que você falou aí? यस मैंने आज डॉक्टर सुआरेस से कहा कि डॉक्टर सुआरेस, हम आपकी किताब पढ़ रहे हैं और मैं इंडिया के लोगों को मदद कर रही हूँ कि कैसे हम अपने आशीषों पर कब्जा कर सकते हैं। आई एम टेलिंग देम डॉक्टर सुआरेस दैट आई एम डूइंग द बुक हाउ टू possess your blessings Oh, in nice. English. How to take the possessions of your blessings in English, and we are following some chapters from this. So I had some questions which, if it will be a blessing if you can teach our people from India. Oh, of course. And this book, this year, you complete 40 years old. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बुक यहाँ पर 40 सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं Millions of them are spread all over the world. और लाखों करोड़ों किताबें पूरी दुनिया में बांटी गई है। I have received a lot of testimonies of people who read the book, were healed, delivered, prospered. और ऐसे बहुत सारे लोगों की गवाहियां हमें मिली है। लोगों ने इसे पढ़ा है, आशीष पर कब्जा किया है, उन्होंने उन्नति पाई है, समृद्धि पाई है और चंगाई पाई है। She wants to make some questions. Then I will try to answer their questions that the people make to her. And I am very pleased to do that. और मैं डॉक्टर सुआरेस से कुछ सवाल पूछूंगी जो हमारे टेस्टिमनीज में आते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं। जैसे मुन्नी देवी हमें पूछती हैं कि अभी तक मुझे मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला है, मुझे इन्फेक्शन से चंगाई नहीं मिली है। डॉक्टर सुआरेस, we have a person joining with us. Her name is Munni, and she says that she is not receiving healing from her infection since long time. Let me tell you, we must understand God's word. It's so simple. It's not difficult. The people lost blessing not because it's difficult. No, very simple. They are religious. We don't need to be religious, even in the gospel. If the Bible says something, we believe in that, and you pray about that, we take possession of the blessing, we must consider the work done, completely done. So we praise God, and we are going to experiment that the Lord healed us. और ये बहुत ही साधारण बात है, इसलिए लोग चूक जाते हैं क्योंकि बहुत ही साधारण है। हमें केवल परमेश्वर के वचन पर कब्जा करना है, हमें मुख से कबूल करना है और हमें धन्यवाद करना है। ये इतनी साधारण सी बात है, इसलिए लोग इसे चूक जाते हैं कि इतना साधारण और इतना सिंपल कैसे हो सकता है। This question, I can give you many answers. All of them are good. For example, many times in the past, I didn't know how to use the faith. I had a headache. I remember one day that was in my bathroom, and the headache was tormenting me. And I prayed, but after that I didn't believe. और मैं इस सवाल का बहुत सारा उत्तर हो सकता है। मैं इस तरीके से उत्तर दूंगा कि बहुत साल पहले मेरे भी बहुत सवाल थे और मैं बाथरूम में था और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और मैंने प्रार्थना किया। Jesus didn't say, pray, you are going to receive the blessing. No, he said that you must pray, but you must believe. If you believe, you are going to be healed. और यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। यीशु मसीह कह रहे हैं आप प्रार्थना करके विश्वास करो कि आपको वो मिल चुका है। All the thing that can happen if there is sin in our hearts. David said, the king, if I have sin in my heart, the Lord is not going to hear me. What am I going to do? I tell you, in the Bible have answer to all our questions. John, 1 John chapter 30, verse 9 says that. और Let's read, because here
is the secret. और बहुत बार दावी जो है वो कहता है कि हमें जैसे है तो हमें केवल विश्वास करना है और हमें कब्जा करना है। आइए हम इसे पढ़ के देखें और हम देखें कि पहला यूहन्ना पहले में इसका क्या उसका गुप्त बात क्या है, उसका रहस्य क्या है। It's written in faith, 1 John chapter 1 verse 9. और पहला यूहन्ना पहला का 9 ये कहता है, If we confess our sins, अगर हमारे हृदय में पाप है तो भी हमें चंगाई नहीं मिलती है। ये राजा दावी ने कहा है और इसका जवाब ये है, जो कोई यह कहता है He is faithful and just and will forgive our sins. कि मैं ज्योति में हूँ फिर भी अपने भाई से घृणा करता है, तब वो अंधकार में है। And purify us from all unrighteousness. और परमेश्वर जो है वो हमें हर एक जो अधर्मिकता है उसे हमें छुटकारा देता है। Then if I say, I feel in my heart, I have a sin. अगर आपको लगता है कि आपके हृदय में कोई पाप है, कोई गलत काम है, I said something bad about someone. और मैंने किसी के बारे में कुछ गलत बोला है, I have to look for that person and say, forgive me. I said bad thing about you. और हमें माफ़ करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम माफ़ करें। मैंने आपके बारे में कुछ गलत कहा है, मुझे माफ़ कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी पाप है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। Or if I said I did something bad with someone, या हो सकता है कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है, the Lord is not going to hear me. तो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। Until I confess to him and to the person that I made something bad to her. जब तक कि मैं अपने मुख से कबूली ना करूं कि मैंने कुछ गलत किया है और माफी ना मांगूं, जब तक मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। If we confess our sin, he is faithful and just to forgive us and purify us for all uncleanness. और परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर हम कबूल करते हैं, उनके पास में जाके पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमें पूरी तरीके से शुद्ध कर सकता है। Jesus is very powerful. ये बहुत ही सामर्थी है। Understand, we are walking with the Lord. आप समझे कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, But we did something bad. लेकिन हमने कुछ गलत किया है, We fell from him. तो हम उनसे अलग हो गए। Now we are separated from him. अब हम परमेश्वर से अलग हैं। If you confess and ask forgiveness, अगर आप कबूली करेंगे और क्षमा मांगेंगे, he is going to forgive us और वो हमें क्षमा करेगा, and you'll be attached to him again. और हम उनके साथ में फिर से जुड़ जाएंगे। So is that many times some people are praying, Lord, heal me in Jesus' name. और बहुत बार लोग बस प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगाई दे दो। But the Lord God is not hearing that person because the person is separate from him. लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर से अलग है। When we ask forgiveness, we come to his presence again. और जब हम पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं, तब हम परमेश्वर के उपस्थिति में दोबारा आ जाते Then हैं। all that you ask in Jesus' name, he is going to give us. जो भी उसके बाद आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगो, वो आपको मिलेगा। But the most important, all of them are important, but the most important for me, I consider, is to have faith. और सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है वो है विश्वास। What faith is assuredness that comes to our heart when we read the Bible and the Bible opens for us and we grab that revelation. और विश्वास क्या है? विश्वास है वो दृढ़पन हमारे हृदय में कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, वो हाँ और आमीन है, वो हो रहा है। So you have authority to do that. तो आपके पास ये अधिकार है करने के लिए। In a few minutes I'm going to pray for you. कुछ पलों में हम आपके साथ में प्रार्थना करेंगे। The Lord is preparing you. परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। You must get a Bible every day, read the Bible. आपको बाइबल पढ़ना है हर दिन। Yeah, where I'm going to read the Bible? The Bible is a big book. मैं कहाँ से बाइबल पढ़ूं? बाइबल बहुत बड़ी है। If you close the Bible and open the middle, अगर आप बाइबल बंद करेंगे और उसको बीच से खोलेंगे, you open the Psalms. तो आप भजन संहिता आप निकालेंगे। Read a little of one Psalm every day. हर दिन एक भजन संहिता जरूर पढ़ें। Or go to the New Testament and read the books of the Gospels, Matthew,
Mark, Luke, and John. और आप नया नियम भी पढ़ सकते हैं, मत्ती, मार्क, मरकुस, लूका और यूहन्ना। But we don't need to read all of them at once. आपको सब कुछ एक साथ पढ़ने की आवश्यकता Every नहीं day है। you read a little bit of the Bible. हर दिन आपको थोड़ा सा पढ़ना है। What come alive to you, get that for you. और जो आपके लिए प्रकट हो जाता है, आपको लगता है ये मेरे लिए जीवित हो गया है, आप उसे पकड़ लें। Meditate on what the Lord says to you. आप मनन करें कि परमेश्वर आपसे किस बारे में बात कर रहा है। The Bible says that when we understand the Bible, जिस हिसाब से आप बाइबल को समझते हैं, we see the face of Jesus. जब हम बाइबल पढ़ते हैं और जिस हिसाब से आप समझते हैं, आप यीशु मसीह का चेहरा देख सकते हैं। Spiritually speaking, और अगर हम ये बात आत्मिक तरीके से है, it's like a picture of him. और ये जैसे एक उनका एक चित्र है, Then we begin to meditate on that. और उसके बाद हम जब आत्मिक तौर पे बात करें, लेकिन जब हम उसके ऊपर मनन करने लगते The हैं, Bible says that faith comes by hearing, और and hearing by the word of God. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन विश्वास सुनने से और सुनने से और सुनने से बढ़ता है, आता है। From up to down is easy. From the word of God, we hear Jesus. और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। It's not to hear with the natural ear, but we understand the word. और ये केवल शारीरिक कानों से सुनने वाली बात नहीं है, ये समझने की बात है कि हम वचन को समझते हैं। For example, Isaiah chapter 53, अगर हम उदाहरण की तौर पे ले, अगर हम लेते हैं यशायाह की पत्री उसका 53, verses 4 and 5. 4 और 5, Then it's written, 53, Isaiah 53, verses 4 and 5. यशायाह 53 उसका 4 और 5। Isaiah lived 700 years before Jesus was born. यीशु मसीह के पैदा होने से पहले यशायाह 700 साल पहले पैदा हुआ था। And he prophesied a lot of things about Jesus. और यशायाह ने बहुत सारी भविष्यवाणी की यीशु मसीह के बारे में। One of the names that he gave to Jesus, Emmanuel. और एक नाम जो यशायाह ने यीशु मसीह को दिया वो है इम्मानुएल। It means God with us. इसका मतलब है परमेश्वर मेरे साथ। And he prophesied about the day that he was going to die in our place. और उस दिन ये परमेश्वर ने जो है वो भविष्यवाणी की, यशायाह ने भविष्यवाणी की जब हमारे जगह पर यीशु मसीह मरने वाले थे। He put Jesus very clearly. उसने यीशु मसीह को बहुत ही स्पष्टता से यहाँ पर डाला है। Before he was crucified, पहले उनके क्रूस पे जाने से पहले he was bound in a tree. और वह एक पेड़ से यीशु मसीह को लिपटा गया था। And a Roman soldier with a cord. और एक रोमी जो योद्धा था उसने एक चाबुक लिया था। There was 9 pieces. और उसमें 9 कांटे थे। And at the end of any piece there was a bone or a arrow. और वो जो 9 उसके मुख थे, उसके ऊपर एक या तो कील था या तो एक नोकदार हड्डी थी। That Roman soldier didn't know what he was doing. वो रोमी योद्धा को नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। But they told him that he must afflict Jesus. लेकिन पहले से ही पता था कि उसे यीशु मसीह को ताड़ना देनी है। Oh, he took that cord and do that with all his force. He beat him on the back. और वो चाबुक जो योद्धा पकड़ता था उसने पूरा जोर लगा के यीशु मसीह के पीठ पे वो मार देता था जब यीशु मसीह चिपके थे। The pieces of bone or arrow destroyed his flesh. और उस कील और उस नोकीली हड्डियों ने यीशु मसीह के मांस को पूरा फाड़ चीर दिया था। Opened the wounds. और पूरी जो घाव थे वो खुले थे। And the Bible says, surely he took up our infirmities and carried our sorrows. निश्चय उसने हमारे दुख उठाए और हमारे ही दुख उठाए। Yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted.
फिर भी हमने उसे परमेश्वर का दंडित, उसका मारा कुटा और दूर दशा में पड़ा समझा। But he was pierced for our transgressions, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया and he was crushed for our iniquities. और हमारे अधर्म के काम के कारण कुचला गया। The punishment that brought us peace was upon him. हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी Look at that. And by his wounds we are healed. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। When you are going to pray, you don't need to say, Lord, heal me, please. और हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें कहने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे प्लीज। Instead of that, you should say, Lord, I'm going to use the power that Jesus gave me. और उसके बजाय हम कहें कि परमेश्वर जो सामर्थ यीशु मसीह के नाम से मेरे पास है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। Because the sickness, the inflammation, the disease, the pain that I have don't belongs to me. और जो भी परेशानी, दुख और जो तकलीफ, जो बीमारी है वो मेरी नहीं है। All my sickness, pain, all the things are put upon Jesus. जो सारे मेरे दूसरे जो तनाव है, बीमारी है, रोग है वो यीशु मसीह पर लादे गए And थे he was afflicted in my place. और वो मेरे जगह पर उसे ताड़ना पड़ी है His flesh was opened. और उनका घाव जो था वो खुला रह गया था They made him a lot of wounds in him. और उनके ऊपर बहुत सी ताड़ना पड़ी And थी by these wounds, I was healed. और इस कोड़े खाने के घाव से मैं आप चंगे हुए हैं। Lord, I'm going to take possession now. परमेश्वर मैं अभी इसी समय अधिकार कब्जा करता हूँ। And then you should say, in Jesus' name, I rebuke every sickness, disease, pain that is attacking me. I bound Jesus in Jesus' name, and I throw out in Jesus' name, and I declare myself healed. आमीन। और जब हम प्रार्थना करें तो एक ही बार हमें कहना है कि वो सारी बीमारी, दुख, ताड़ना यीशु मसीह के नाम से मैं उसे निकालता हूँ। वो मेरे पास से चली गई है और मैं कबूल करता हूँ कि मैं चंगा हो गया हूँ यीशु मसीह के नाम से। Tomorrow I will be in a city called Belo Horizonte. और कल मैं एक शहर नामक जिसका नाम है बेलो होरिज़ोंते में वहां जाऊंगा। It's a big city of 3 million people. और वहां पे 3 लाख लोग रहते हैं। I will perform there 4 services. और माफ कीजिए 30 लाख लोग रहते हैं और उस वहां पर मैं 4 सभाएं करूंगा। The first one will be at 9 of that city. It means 5:30 p.m. in India. और आपके लिए 5:30 बजे होंगे शाम के, हमारे लिए सुबह 9 बजे कल पहली सभा डॉक्टर सुआरेस वहां करेंगे। If you can watch in Facebook or YouTube, you can watch it tomorrow. अगर आप देख सकते हैं तो आप फेसबुक और यूट्यूब पे उसे जरूर देखें। In TikTok also. और अगर आपके यहाँ पे टिकटॉक है तो उसमें भी देख And I सकते हैं। think that you can watch this in another media social. I forgot the name. Instagram. आप ब्राजील में अगर हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। You are going to see people with crutch, sticks, and walkers, and wheelchair being healed. और आप देख पाएंगे जब वो सभा देखेंगे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे छड़ी के साथ, क्रच के साथ, उनकी बहुत सारे तकलीफों के साथ व्हील चेयर पर आते हैं, बैसाखी के साथ, और वो पूरी तरीके से चंगाई होके वहीं लकड़ियाँ छोड़कर चले जाते हैं। Maybe you ask me how you know that this will happen. और आप मुझे पूछेंगे कि आपको कैसे पता है कि ये होने वाला है। Man, Oyoma, I am a preacher for more than 50 years. मेरे भाइयों और बहनों, मैं 50 साल से भी ज्यादा एक प्रचारक रहा हूँ। I used to conduct 2-3 meetings or more in a single day. 2 या 3 सभा से ज्यादा सभाएं मैं करता था एक दिन में। And I never happened that one of them there was no miracles. और ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि चमत्कार सभा में ना हुए हो। एक भी सभा बिना चमत्कार के खत्म नहीं हो। Do you remember that I said many people lost the blessing because it's not difficult but because it's easy. और मैंने जैसे पहले कहा था कि बहुत सारे लोग अपने आशीष को चूक जाते हैं, गवा देते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि बहुत
बहुत साधारण है, सिंपल है। The place will be packed of people. वहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग होंगे। You are going to see people you don't understand Portuguese, but you are going to see them being healed. और आप पोर्चुगीज नहीं समझेंगे, लेकिन आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार होते हैं। But in a few minutes I will pray for you here. लेकिन कुछ समय में हम आपके लिए भी प्रार्थना I करेंगे। think that you have a video that shows that the blessing that someone received. यस डॉक्टर स्वारेस। और डॉक्टर स्वारेस मुझे पूछ रहे हैं कि एक टेस्टिमनी है, हम देखेंगे कि कैसे वो व्यक्ति आशीषित हुआ है उस टेस्टिमनी के द्वारा। Watch this video 4 minutes. After that I will be back to pray for you. और 4 मिनट का इस वीडियो को देखिए ताकि आपका विश्वास बढ़ जाए और हम वापस यहाँ लौटेंगे। Please, director, let's go to the video. आइए हम उस गवाही को देखें। काटिया और क्लाउडोमीरो की 2 बेटियां हैं और उनकी शादी को 21 साल हो चुके हैं। उनके घर में ही उनके कपड़ों का व्यापार है, पर उनके व्यापार में हमेशा आर्थिक समस्या रहती थी। पहले फैक्ट्री छोटी थी और इसकी जगह बहुत ही ज्यादा सीमित थी। मेरी बेटियां हमारी सिलाई करने की जो मशीन है उसके साथ ही पली बड़ी हैं और मुझे सिलाई करते करते उनका ध्यान रखना पड़ता था और बहुत मुश्किल होता था। व्यवसाय के दुकान हमेशा बंद रहते थे और हमारी कोई भी तरक्की नहीं होती थी, बल्कि हमें कर्जा लेना पड़ता था। हमने बिना कुछ बनाए अपने पूरे जीवन काम किया। मैं सुबह के 5 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक काम करती थी। हम फिर भी गरीबी में रहते थे। हमें बहुत मुश्किल होता था कि हम कपड़े खरीदे, जूते खरीदे या फिर अपने बिजली का बिल को हम भर सके। उस समय हमारा बपतिस्मा हुआ था किसी और सेवकाई में। हम बहुत समय वहाँ थे और फिर वहाँ से अलग हो गए। 2008 में फेथ शो के द्वारा काटिया ने ग्रेस ऑफ गॉड कलीसिया को पाया। उनका पूरा परिवार कलीसिया के ईमानदार सदस्य बन गए। 2008 में उसने निर्णय लिया कि हम फेथ शो में बीज बोना शुरू करेंगे। मैं सीखने लगी और विकास भी करने लगी। जो संदेश हम कलीसिया में सुनते थे हम उसे अभ्यास में लाते थे। हमने दान और दशमांश देना शुरू किया। हम शादीशुदा नहीं थे, लेकिन हमने कानूनी विवाह तय किया। हमने शादी की और हमने प्रभु के साथ अपने संबंध सही किए और दरवाजे खुलने लगे। परमेश्वर हमारे दुकान में लोगों को भेजने लगे और लोग हमें पैसे देने लगे रुपयों में, और हमारी खूब तरक्की होने लगी हर हफ्ते। हमने प्रभु की आशीष देखना शुरू की और साल के अंत में हमने अपने सारे कर्जे चुका दिए, अपने बिजली का बिल भर दिया और उसके बाद हमारे पास $10,000 रह गए। जब हमने सबसे कम आशा रखी थी कि पैसे आएंगे, वास्तव में तब हम ज्यादा से ज्यादा समृद्ध होने लगे। तो 2012 में हमने अपनी पहली दुकान खरीदी। परमेश्वर का चमत्कार। 2016-17 में हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा परियोजना शुरू किया। मैंने परमेश्वर को कहा कि मुझे एक बड़े जगह की जरूरत है, क्योंकि हमारे व्यवसाय की जो मांग है वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी थी। इतना कि हमारे खुद के घर में भी हमारे लिए जगह नहीं बची थी। मैंने परमेश्वर को कहा कि मुझे कर्जे में नहीं रहना है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक नया जगह बनाऊं और पैसे देके मैं खत्म करूं। इस दौरान हम कलीसिया में मेहनत करते रहे, जैसे प्रार्थना सभा और कैंपेन्स में हिस्सा लेना। परमेश्वर ने हमारा मान रखा और जून 2017 में हमने अपना घर बनाना शुरू किया। पहले हमने सोचा कि हम 2 मंजिल बनाएंगे। जब हमने दूसरा मंजिल बनाना खत्म किया, हमने तीसरे की शुरुआत की। अक्टूबर में हमने अपना 4 मंजिला का घर बना लिया। दुकान के लिए अवसंरचना, कपड़े काटने के लिए अवसंरचना, बिना किसी से उधार लिए, शून्य। हमने कुछ भी वित्त नहीं दिया, हमने सब कुछ नकद में भुगतान किया। और आज परमेश्वर के अनुग्रह से सिर्फ कपड़े काटने की लंबाई हमारी फैक्ट्री की 20 मीटर है और कपड़े सीलने की 20 मीटर है। आज मेरे पास 50 सीलने की मशीन है जो कर्जा मुक्त और अच्छे से कार्य करते हैं। आज हमारे पास कुछ लगभग 20 से 25 कार्यकर्ता है और पहले से ही हमारे पास कुछ 6 दुकानें हैं। आज ये जो मैना बेला ब्रांड है ये बहुत सारे जगह में और शहरों में जाना जाता है। हमारे पास बाहर देश से भी लोग आते हैं। हाल ही में हमारा जो व्यवसाय है, हमें एक अवार्ड मिला बेस्ट कस्टमर सर्विस का इटाजाई में। प्रभु में जब हम कार्य करते हैं तो चीजें होती हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो मनुष्य के लिए ये असंभव है। मैंने उनसे समुद्र के किनारे घर मांगा था और आज हमारे पास 2 घर हैं। ये हमारा एक सपना था और हमारा सपना पूरा हुआ। वो एक खास आरामदायक जगह है जो शांत है। जो कुछ भी मैंने परमेश्वर से मांगा है उसने मुझे दुगना दिया है। उसने मेरे परिवार और मेरे व्यवसाय की रखवाली भी की है। हम अंतर देख सकते हैं।
जब हम प्रभु की सेवा करते हैं और जब हम नहीं करते। जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वो हमारे लिए हमारी सोच से बढ़कर करता है। My friends, in the Bible, Isaiah 54, verse 5 says, "For your maker is your husband." आमेन। और यशाया 54 में 8 में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो आपका धनी है। The Lord Almighty is His name. परमेश्वर उसका नाम है। The Holy One of Israel is your Redeemer. क्योंकि तेरा कर्ता ही तेरा पति है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। He is called the God of all the earth. इसीलिए वह पवित्र और तेरा छुड़ाने वाला है, वह समस्त पृथ्वी का परमेश्वर कहलाता है। Look at that, verse 6. और आगे 6वां वचन कहता है, The Lord will call you back, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसे बुलाया है as if you were a wife deserted and distressed in spirit. मानो तू त्यागी हुई और मन की दुखी वरन दुभावनी त्यागी हुई पत्नी हो। A wife who married young only to be rejected, says your God. तेरा परमेश्वर की यह वाणी है, शर्म। Look at that. For a brief moment I abandon you. और क्षण भर के लिए मैंने तुझे त्याग दिया था, But with deep compassion I will bring you back. अब बड़ी दया करके फिर तुझे रख लूंगा। Oh, praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। I will pray for you now. मैं अभी आपके लिए प्रार्थना I कर। have a glass of water here. If you have a glass of water, you can roll the water. I think that is your glass. Yes. And you can do the same. I didn't prepare the water. Go and prepare. I will wait for 20 seconds. और हम 20 सेकंड्स के लिए रुकेंगे। अगर आपने पानी नहीं लिया है तो आप जल्दी जाके पानी ले लीजिए, ताकि हम इस आशीष के क्षण को खोए ना। I ask the Lord to put His power in the water. और हम प्रार्थना करेंगे कि हम परमेश्वर के सामर्थ को यहाँ पर उंडेलेंगे। After the prayer, you are going to drink the water. आप इसे पिएंगे And believe. और आप विश्वास करेंगे। If you don't believe, nothing will happen. अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। All that you receive from God is by believing. आप जो भी कुछ ग्रहण करते हैं वो केवल विश्वास के द्वारा है। So I pray now, Lord God, in Jesus' name, I present you my glass of water. यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर इस पानी के ग्लास को आपके सामने रखते हैं। And they are doing the same. Present you the glasses of water, and I ask you, put your anointing in every cells of that water. और परमेश्वर इस प्याले में जो भी मेरे भाई बहनों ने पकड़े हैं, हर एक उस कण को तू शुद्ध कर यीशु मसीह के नाम से। I thank you so much for that. मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। Or maybe drink the water now. आइए हम इसे पानी में पिए। Now I'm going to pray for you. And the Lord Jesus is going to bless you. और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है। Close your eyes and concentrate your faith. आए हम विश्वास के साथ अपनी आंखों को बंद करें और मनन करें विश्वास के ऊपर। Father, in the name of the Lord Jesus, I come before you to bless these people that are praying with me. परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं उनको हम आपके सामने लाते हैं। And I rebuke every sickness, every pain, every evil that are in that person. And I say, go from that person now. और जो भी कोई दुष्ट आत्मा या दुष्ट बीमारी और दुष्ट के काम उस शरीर में हो रहे हैं, मैं उसे कहता हूँ निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। That's enough. बस ये काफी है। I prayed and I believe. और मैंने प्रार्थना की और विश्वास किया। If you believe, you do everything that you could do before. और आप वो हर चीज कीजिए जो आप पहले नहीं करते थे। Maybe you couldn't raise your hands. हो सकता है कि आप अपने हाथ को नहीं उठा सकते थे। Then do that now. तो अभी आप इसे कीजिए। You could put your hands on the back. आप अपने हाथ को पीछे नहीं मोड़ Do that. सकते थे, आप करिए। You could move your knees. Move them. आप पहले अपने घुटनों को हिला नहीं सकते थे तो The Lord is हिलाइए। blessing you. परमेश्वर आपको आशीष दे चुके हैं। Lift the stick, the crusher, the walker, the wheelchair, and start walking now. और जो भी व्हील चेयर आप बैसाखी या जो भी कोई इस्तेमाल करते थे छड़ी, उसे बाहर रख दीजिए और आप चलिए। I praise the Lord for that. मैं परमेश्वर का स्तुति करता हूँ इसके लिए।
Tell us what the Lord did for you. और आप जरूर हमें बताइए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। She's going to give you our WhatsApp and our phones for you to call us and tell us. और हम आप स्क्रीन के नीचे भी देख पाएंगे, नंबर होंगे। मैं भी आपको व्हाट्सएप का नंबर बता रही हूँ। +55 लगाना ना भूलें। +55 ये ब्राज़ील का कोड है। 11 +55 11 988 300 411। मैं दोहराऊंगी दोबारा, आप लिख लीजिए। +55 11 988 300 411। और हमारा प्रार्थना का नंबर है। अगर आप कॉल करके हमारे साथ बात करना चाहते हैं, आप आपकी गवाही देना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये मुफ्त है, आप कभी भी इस पे कॉल कर सकते हैं। 78 929 22 4433। मैं दोहरा रही हूँ, 78 29 22 4433। बहुत ही आसान सा नंबर है। 78 292 24433। Well, we are finished now our lives. I praise the Lord and I bless you. In Jesus' name, see you next in other time. और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ में जुड़े। परमेश्वर का बहुत सारा प्रेम आपके साथ रहे। हम नहीं जानते कि मैं अब यहाँ दोबारा कब लौटूंगा। तब तक सबको जय मसीह की शुभ रात्रि। God bless you. so much. परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।